So, good evening to all of you. This is founder RN Talks, Ranjita Nath Ghai, and I'm back with my next series of interview sessions. And today we have a very, very special person over here. She is professionally working as the head learning and department on one of the global cloud-based platforms, and she has a corporate experience of about over 18 plus years. She is also a law of attraction executive life coach, and not only that, she is a certified psychometric test professional, NLP practitioner, and a mind trainer. She's also a poet and author, a YouTube producer, and a mental fitness and transformation coach. Yes, we are talking about none other than our very own magical Sudipti. So, without wasting any more time, I want to invite Sudipti on our platform, and she's also an RSVKA awardee for being a Karamvira. So, welcome to RN Talks, Sudipti, and we are Thank so you. happy to have you here. And congratulations on being a Karamvira on our platform. Thank you. Thank you so much, Ranita ma'am. And thank you for giving me this prestigious award and giving me this opportunity to reach out to more people because I really love creating those magical smiles around the world. So that's great, Sudipti. Means since I met you, there was always a positive energy from you that always used to kind of engulf me, and it was so positive that we just instantly got talking as if pata nahi kab ke bichde dost hai, and there was never I don't know you, I'm meeting you for the first time. That inhibition was never there when I spoke to you, because maybe because of the positivity that always comes from you. So, for those people who do not know about law of attraction (LOA), how do you, as a law of attraction expert, as a practitioner, how would you make it simple to them? So law of attraction is basically one of the laws of universe. जैसे कि law of gravity है, जैसे कि law of karma है कि what goes around that comes around, और maybe law of sowing seeds है कि जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे. बिल्कुल उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ये एक प्रकृति का नियम है among all the other universal laws, and which means that similar energies attract towards each other. और जैसे कि शाहरुख खान ने भी कहा है अपनी एक मूवी में कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है. बट इसमें बस एक चीज़ है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम कैसे उसको अपने फेवर में काम कर सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी हम सबके लिए काम कर रहा है, भले ही हमारे हम बीच में माने. भी है. लाइक आई सेड, बिल्कुल. when I met you, I never felt कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ. It was like an instant connect. I just felt like, एब्सोल्युटली. yes, I can speak very comfortably with you. I can be very comfortable. I can be me with you. I don't have to pretend to be with you. So I guess that बिल्कुल. is teeny weeny example of law of attraction working एब्सोल्युटली, in a correct एब्सोल्युटली. form. बिल्कुल, बिल्कुल. ये बिल्कुल इस तरह से जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो हम एफएम ऑन करते हैं और हमने अगर 98.3 लगाया है तो फ्रीक्वेंसीज़ यहीं सारे में मौजूद हैं. हमने 98.3 लगाया तो वो फ्रीक्वेंसी कैच करके वो गाना सुना देगा. हमने 102.7 लगाया तो बिग एफएम का गाना कैच करके सुना देगा. सो मैंने एक फ्रीक्वेंसी लगाई कि मुझे उन सब से मिलना है जो मेरी हेल्प करेंगे ताकि मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकूं. एंड हियर यू गो, यू केम टू माय फ्रीक्वेंसी एंड वी मेट टुगेदर और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं. So Dipti, ये जो law of attraction है, you have explained so beautifully. Means when I would say maths में भी है ना, minus minus makes a plus, प्लस. राइट. right? And plus is positive energy. So I won't say minus as a negative energy. It's just a kind of a, like मैं लोगों को बता रही हूँ, when two like-minded people with two people of the same synergies come across each other, you vibe, and that is what sets off a channel to knowing new people, and that is what law of attraction is, very aptly put by Sudipti. So मेरे को एक ये बात बताओ
कि किसी को देख के तुम्हारे को ये इंस्पिरेशन मिली है इस इंसिडेंट की, या यूनिवर्स लाइक लॉज ऑफ यूनिवर्स जो है इसके ऊपर काम करते करते पढ़ते पढ़ते तुमने इसका इसके ऊपर बिल्डअप करना शुरू किया, और वर यू इंस्पायर्ड इन लाइफ विथ एक्चुअल पर्सन और अ पर्सनालिटी जिसने तुमको इस तरफ गाइड किया? So basically, this unconsciously started from my childhood. Meri nani, she was my inspiration. The way she was disciplined, the power, the authority she had in her conversation, and connecting people was something which was her most important power. I used to admire her a lot, and whenever I used to be with her, I used to observe her and learn from her. उनसे मैंने बहुत सारी यूनिवर्सल लॉज से रिलेटेड चीज़ें सीखी थी। बट जब आप छोटे होते हो, सो आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड नाइन्थ क्लास, बट तभी मैं कॉन्शियसली उसको पिकअप नहीं कर रही थी और मुझे समझ नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या ये यूनिवर्सल लॉज होते हैं। मैं सिर्फ अपनी नानी को समझ रही थी और उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद था, तो मैं उनसे सीख रही थी। And now that I know like what is law of attraction and practicing different laws of universe, I realize that this is a calling because universal laws also picks you. So I have now become a vessel, I think, and I have surrendered myself, and it's my spiritual practice. आई जस्ट लव क्रिएटिंग दोज मैजिकल स्माइल्स। और मुझे सोते सोते भी कोई बोले कि कोई परेशानी में है, किसी की लाइफ में वो लोनलीनेस फील कर रहा है, सो माई लाइफ हैज ऑल्सो बीन गुड पैकेज ऑफ अ वंडरफुल रोलर कोस्टर. So I myself love myself a lot because I have seen life from loneliness to liberation. So since I have lived that life, so I have become my own inspiration. एंड आई रियलाइज कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्रॉस कंट्रीज, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग देश के कोने में, जो कि अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, जो कि ये या तो अकेले हैं रियलिटी में कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, या फिर वो लोग जो फैमिली में सबसे बड़े हैं, बिकॉज एवरी वन इज रीचिंग आउट टू देम कि प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लेकिन वो जो बड़े लोग हैं वो किसी के पास नहीं जा सकते कि भाई सब मेरे पास आते हैं, वेयर डू आई गो, एंड समहाउ दे feel a bit a lot of effort is required to ask for help, so they don't go and reach out for help कि मुझे आज जरूरत है, so they are lonely. एट द सेम टाइम जो फैमिली में सबसे छोटे वाले बच्चे हैं, सबसे छोटी वाली जनरेशन है, उनको लोग सोचते हैं इसके पास तो सब बड़े हैं, इसको क्या परेशानी होगी, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, दे आर सब विद प्लैटर, बट दे आर ऑल्सो फीलिंग लोनली एट सम पॉइंट। और जो बीच में है फैमिली में, उनके पास लोग कहते हैं कि बड़ा भी है छोटा भी है, इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनके तो ठाट हैं अपने, बट दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट लोनली void in their life. So I feel that I know I have lived the journey from loneliness to liberation. And now I feel that being a survivor guide, with the help of my trainings, with the help of my counseling sessions, with the help of what my books and my YouTube channel, I want to provide them a vehicle कि कोई बात नहीं अगर आप अकेले हो, it's okay. और लाइफ ने आपको कुछ भी दिया है, कोई परेशानी नहीं है, आप इन चीज़ों को अपना व्हीकल बनाइए और आप आराम से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, बिकॉज ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, इसलिए इसलिए सोचिए कम और जीना शुरू कर दीजिए। This reminded me of one thing. This is strong and loneliness का बताया. This happened to me uh, when my father was terminally ill, and I was working in Alwar, and every Friday I used to take a train, Shatabdi, come to Delhi, and पापा के साथ रहती थी. Saturday, Sunday, I was building this particular house जो अभी जिसमें मैं बैठी हूँ. I was just पूरा तोड़ के इसको rebuild कर रही थी, and I would come to Noida from Delhi, contractor के साथ सारा काम करती. Then Monday morning I used to catch morning Shatabdi, reach the school by 8:39, एंड देन अगेन स्कूल में चालू हो जाते, देन मैं रात मैंने शाम को घर जाती है एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन इवेंचुअली वी शिफ्टेड हियर. देन आई वाज फुल टाइम पापा के साथ. देन ही पास्ट अवे. देन पापा का मुखाग्नि करना, बिकॉज आई वाज हेल बेंट ऑन दिस थिंग की मीन्स सिंस आई एम द एल्डर डॉटर, and I was like, my father had always brought us up as
बेटा है या बेटी है, दोनों एक ही चीज। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यू आर माय मदर, यू आर माय फादर, यू आर माय व्हाट यू कॉल सन, यू आर माय डॉटर। तू ही obviously. मेरा सब कुछ है। सो जब पापा का क्रिमेशन का हुआ था, सो एवरीबॉडी वाज लाइक, कंधा कौन देगा, ऐसा मैं दूंगी। सर मुखाग्नि कौन देगा, ऐसा मैं दूंगी। अग्नि भी सब मैं ही करूंगी, एंड देन क्रिमेशन भी मैंने ही किया। सो at the I was like, just going on and then somebody just told me, रोने का इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। हाँ, आंसू आ जाते थे, but then it was never very publicly displayed. But I used to cry alone. But people said, you are so strong. I said, do I have an option? Absolutely, absolutely. Do I have an option? I don't have an Correct. option of not being strong. I have a mother who's lost her husband. I've got a younger sister who has also lost a parent. And sister doesn't stay here, she stays in UK. So I have to get everything done. I have a family, my dogs, my so tell me, do I have an option of not being strong? The day I have that option, मैं भी छोड़ दूंगी और आराम से बैठ के रोने वालों में मैं भी शामिल हो जाऊंगी। पर फिलहाल मेरे पास स्ट्रांग Option ना नहीं. होने का कोई ऑप्शन नहीं है। Absolutely. यही ऑप्शन है दैट मैं स्ट्रांग रहूं। सो एट टाइम्स, लाइक व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, आई सब होने के बाद भी एट नाइट आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली। आई यूज्ड टू मिस हिम a lot. And then from whatever he used to tell me, जैसे पापा मेरे को हमेशा लाइफ में गाइड करते हो, आई टुक माई स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर, एंड देन आई मूव्ड आउट एंड देन आई बिल्ट आर एन टॉक्स। I never took my father's death as an excuse not to build something new. I've seen many people do that. I've seen many people do that, सुदीप्ति। मेरी मदर का डेथ हो गया तो हम, मैंने 2 साल हो गए, आप शौक ही बना रहे हो। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मनाइए, बट हैव यू स्टॉप लिविंग? स्कूल जाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया? नहीं ना। नहीं. तो कुछ नया करना या जिंदगी को जीना, ये दोबारा हंसना क्यों छोड़ दिया? बिकॉज they would never have wanted it life otherwise for us. So why are Absolutely. we like, जबरदस्ती, एक होता है ना पिटी सीकर्स, why do you have to become a pity seeker? So I think your what as a NLP coach you are doing, and जो attraction के बारे में बता रहे हो, जो inspiration, the positivity that you are getting into the universe, like I was strong enough, okay, but not everybody is strong. Absolutely. Maybe if I had known you, then I would have discussed about this with you, but then I did not know you then, like, so I couldn't have. So you say that इसी positivity को जो आपकी नानी ने आपको दिया है, you have been taking it forward since you were 9 years old, right? Yeah. And now you have made it you can say your lifeline. I won't call it profession, I will call it a lifeline। कि आपने किसको Absolutely. ऐसी लाइफलाइन बना लिया है कि जिसको कहीं पे भी लोनली लगता है, लाइक यू बड़े सही तरीके से डाला है कि लोनलीनेस किसी भी टाइम पे आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, सबसे बड़े को बिल्कुल. भी आ सकती है, सबसे छोटे को भी आ सकती है, और जिसके पास सब कुछ है उसको भी आ सकती है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी आ सकती है, और खुश भी सभी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. अगर और लोनलीनेस मैंने तो इस खुशी भी सभी को मिल सकती है। बिल्कुल, मैंने इस पैशन को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट किया और मेरा प्रोफ़ेशन भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ही चलता है। और जैसे कि आपने बोला कि जब आपके फादर का फिज़िकली ट्रांज़िशन हुआ, सो बिल्कुल हम्म। उसी तरह से जब जब तक मेरी नानी थी, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बट आई वाज़ इन 12th व्हेन शी पास्ड अवे। And since then, I felt like devastated, completely. सो कभी कभी हम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो जो रात का जो टाइम था ना, जब हम आप उनको मिस करते थे, हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि उसको डील कैसे करना है। सो राइट। लाइक इन 2020, वन ऑफ माय मेंटर, माय पार्टनर, माय कंप्लीट फैमिली पैकेज एंड माय एल्डर ब्रदर आल्सो, दे आल्सो पास्ड अवे। सो आई रियलाइज लाइक हाउ टू डील विद डेथ ऑल्सो। एंड ये सब चीज़ों ने लाइफ में जितने भी ये प्रॉब्लम्स आए हैं, इन सब चीज़ों ने ही मुझे इंस्पायर किया कि हर सिचुएशन का एक फॉर्मूला, एक टेक्निक बनाओ और उस टेक्निक से अपने पैशन की मदद से लोगों की लाइफ आसानी से आसान करो। सो बेसिकली, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट ईजी टू
live with someone's death. It's not easy, but at the same time वो लोग जो आप बोल रहे हो कि पिटी सीकर्स है, बेसिकली क्या है कि पिटी सीकर्स नहीं है, उनके कर्मा में बेसिकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी, तो उनको पता नहीं है, और वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपने दर्द से इतना कि वो उस दर्द के आगे कुछ देख नहीं पा रहे। जैसे हमारी आंखों में अगर आंसू भर जाएं तो सामने का सब कुछ धुंधला हो जाता है, तो हमें उस आंख से आंसू को गिराना ही पड़ता है। कभी कभी आपके पास, मेरे पास चॉइस नहीं थी, तो हमें मजबूरी में आंख बंद करके वो आंसू गिराना पड़ा, तो सब साफ हो गया। लेकिन कुछ लोगों के पास जब ऑप्शन होता है ना, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई ना कोई है साथ में ख्याल रखने वाला, तो उनके पास ऑप्शन होता है, तो उनकी आंख आंसू से भरी रहती है, इसलिए सामने का क्लियर नहीं होता। बट दे टेक टाइम, या तो खुद समझ लो, नहीं तो प्रकृति सिखा देती है अपने तरीके से। आई एग्री, आई एग्री। इफ यू समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो यस, एंड व्हेन कहते हैं ना, व्हेन द यूनिवर्स टीचेस यू, इट विल बी अ लिटिल हार्श। झटका दे के सिखाएगी, और कभी कभी वो झटका जोर के भी लगता है। सो बेटर इज टू खुद से सीख लो। एग्जैक्टली। So, Right. Sudipti, on this note, like I would like to know, जब बच्चे थे, childhood, when you were 9 years से, तो you were quite tuned into this. So what, as like मैं जब बच्ची थी, मुझे पता है, मुझे टीचर खेलना बहुत पसंद था, ओके। और मैं घर में आती थी, एंड my mother was working as a, मैंने, she was in ESI, so we had official quarters, एंड उसमें ना एक बहुत सुंदर सा कॉरिडोर था, उसमें मोजाइक का वॉल था, उसमें चौक बड़ा अच्छा चलता था। तो मैं क्या करती थी, टीचर के वहां से जो इतने इतने चौक के टुकड़े जो फेंक दिए जाते थे, आई यूज्ड टू कलेक्ट देम एंड गेट देम होम, एंड टॉयज को बिठा देती थी, एंड वो दीवार की मम्मी की साड़ियां खींच खाच के निकाल के वो जैसा तैसा गंदा पदंदा लपेट के खुद टीचर बन जाना और पढ़ाते रहना। आई गेस ये टीचर गिरी मेरे से वहीं से काइंड ऑफ आई हैड टेकन इट ऑन, एंड देन लाइक प्रोफेशन। सो हर एक बच्चे का एक वो होता है, कोई मेरे जैसे टीचर खेलता है, कोई घर घर खेलता है, या फिर कोई किताबें पढ़ता है, किसी को साइकिलिंग का शौक है, और somebody likes to run marathons, like so as a child एज अ चाइल्ड, छोटी जो सुदीप्ति थी उस टाइम पे, तो व्हाट वाज योर पैशन, और व्हाट डिड यू एक्चुअली enjoy, रियली enjoy doing when you were a kid? Uh, when I was a kid, I really wanted to be a doctor because मेरी mother, I love my mother a lot, और मेरी mother डॉक्टर बनना चाहती थी, but because of the facilities, the circumstances, she could not be that. तो मुझे लगा कि बचपन से ही कि अगर मैं, और मेरे लिए उनका अप्रूवल बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो शायद आई गेट हर अप्रूवल, आई गेट हर लव, हर एक्सेप्टेंस। Though that is a different story altogether, that didn't happen so far, but then जब मेंढक काटना होता है ना, when you have to cut the frog and there's a dissection where you have to plant a flag in the frog, जब उसका heart beat हो रहा है, दैट वाज सो स्कैरी फॉर मी कि उसके धड़कते हुए दिल पे वो फ्लैग लगाना, बहुत घबराहट हुई मुझे, और मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगी। बट मेरे अंदर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मुझे लोगों के साथ हंसना हंसाना बहुत पसंद था, मुझे बातें करना बहुत पसंद था, एंड आई वॉज एक्चुअली लेफ्ट अलोन बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, so that was also one of the reason I was left alone. High five. आई वॉज ऑल्सो लेफ्ट अलोन फॉर दिस कि मुझे चेस नहीं खेलना आता था, मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, हर किसी से बात करती थी, लाइक कास्ट सिस्टम्स, एजुकेशन की कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, आई यूज्ड टू टॉक टू एवरीवन, और मैं ऐसे ही थी सबके साथ। सो हंस के बात करना, खूब हंसना हंसाना। सो माई फैमिली यूज्ड टू थिंक लाइक इसको ये नहीं सिखाया कि इसको फैमिली स्टैंडर्ड देखकर बात करे, पढ़ा लिखा देखकर बात करे, या इसको पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ये मोटी होती जा रही है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मुझे लगा कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, लेकिन नानी के साथ तक तब तक सब ठीक था। इवेंचुअली व्हाट आई फेल्ट इज आई एम फुल ऑफ वीकनेसेस, एंड आई वाज फीलिंग फुल ऑफ अनवर्दीनेस, दैट आई एम नो मोर वांटेड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बट जैसे जैसे बड़ी हुई और इस
लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारे यूनिवर्सल लॉज को स्टडी किया, आई कन्वर्टेड माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ्स, और मेरी बोलने की ताकत को मैंने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने में कन्वर्ट कर दिया. एंड नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड अपर्णा, उसकी डॉटर ने मुझे बोला कि मौसी आप तो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुकी हो, क्योंकि आप अभी भी लोगों की लाइफ में खुशियां क्रिएट करती हो, आप उनके दिल की डॉक्टर बन चुकी है. एंड आई फेल्ट लाइक वाओ, यस, मैं ऑलरेडी डॉक्टर बन चुकी हूँ. सो काटने वाली नहीं, लेकिन हाँ, मैं लोगों के दिल को सुकून पहुंचाती हूँ. सो इन अ वे, yes, I am a doctor, and I'm really feeling proud that people trust me. They share their heart, their stories with me. And as of now, like I am my own strength, but I'm bonus, I'm strength for everyone around me. So that's how I became to be, a doctor, or maybe a chosen one. कि इतनी शिद्दत से मैंने डॉक्टर बनना चाहा कि सारी कायनात ने मुझे वैसे नहीं बट ऐसे डॉक्टर बना दिया. बढ़िया. सो व्हेन यू आर, जब हम इस टॉपिक पे आ ही रखे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड दिलों के डॉक्टर हो, सो व्हाट टेक्निक और स्ट्रैटेजी डू यू जनरली यूज विद your clients for their mentoring or their coaching as and when required? Basically, सबसे पहले तो like I listen to them, like what they are going through, because when people are facing a lot of difficulties in their life, they want to feel heard, they want to feel understood, and without listening, I cannot figure out like what tailor-made or customized support system I can be for them. एंड ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्सल लॉज है, सबकी स्टोरी के रोलर कोस्टर अलग अलग होते हैं. एवरी वन इज गोइंग थ्रू देयर ओन डिफिकल्टीज. वो समझ के देन आई टेल देम हाउ टू लव योर सेल्फ. सो सेल्फ लव इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which I train people for. The other thing which I use is thoughts reframing. So, thoughts reframing कैसे, that we all are using affirmations. हम किसी से भी बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, एवरीथिंग इज एन एफर्मेशन. लेकिन कौन सी एफर्मेशन मैं अपने लिए यूज करूं जो सच भी मेरे दिल को महसूस हो. ऐसा नहीं है कि फेक इट टिल यू मेक इट, वो वाला नहीं, क्योंकि जब तक आपके लॉजिकल ब्रेन को लग रहा है ना कि फेक है, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी और वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा. So how to use appropriate affirmation, what type of affirmation can be used, and how to use it in what feelings and circumstances zone. I train them for that also, and I train them with the help of experiential learning. क्योंकि लाइफ में जो कुछ चल रहा है चारों तरफ, उसकी वजह से हमारे सबके लाइफ में, ब्रेन में वायरस आ गया है. और अगर मैं उनको ये सिखा दूं कि एक परमानेंट एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो अपने सुपर कंप्यूटर से अपनी लाइफ को आसानी से आसान कर सकते हैं. सो आई माई बुक एंड एवरीथिंग ट्रेन्स पीपल. देयर इज अ फॉर्मूला विच आई हैव shared in my book, and the technique through which you can install a permanent antivirus in your brain computers, and you can reframe your thought process. और उस thought process reframing से हम लोगों की लाइफ आसानी से आसान करते हैं, ताकि वो मुझ पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि इवेंचुअली खुद को प्यार करते हुए सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके. I remember once when I was speaking to you in another chat on our show only, you told me कि मैं खुद की ममा हूँ और मैं अपना ही बच्चा हूँ, और मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, और जैसे एक मदर अपने चाइल्ड को नरिश करती है, मैं ऐसे ही खुद को नरिश करती हूँ. तो थोड़ा सा आई वुड, बिकॉज दिस इज योर इंटरव्यू एंड आई डोंट नो वो कितनों ने देखा था नहीं था, बिकॉज वी आर नॉट मेनी पीपल एट दैट टाइम. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट रियली टच्ड माय हार्ट, यू नो, बिकॉज एक माँ अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देती, एक माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती. शी विल गो टू एनी लेंथ्स टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, whether the mother is a human or an animal or an ant or a bird. Mother is one person who can sacrifice herself for her own offspring. And यहाँ पे तुम वो कॉन्सेप्ट बता रही हो, मैं खुद की ममा हूँ, मैं खुद ही का बच्चा हूँ. So can you just speak a little on this? फिर मैं अगला पूछती हूँ. Sure, bilkul. And thank you so much for asking me to put some light on this, because I really want all the females to listen to this, and I really want all the males also to listen to this. बिना प्रेग्नेंट हुए माँ और बाप कैसे बनते हैं, ये ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, and I really want people to listen to it, क्योंकि अगर उन्होंने ये सुन लिया, समझ लिया,
तो उनकी लाइफ में डिप्रेशन कभी नहीं आएगा. सो माई फिलोसफी इज दैट मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ. हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां हमें लगता है कि प्लीज मुझे मुझे कुछ नहीं दिखावा करना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो एंड मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछो. लेट मी बी अंडर द शेड. जो मेरी माँ का आंचल है जैसे हम उसमें छुप जाना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आई जस्ट वॉन्ट टू बी अंडर द शेड एंड डोंट आस्क मी एनीथिंग. सो वो एक छोटा बच्चा हम सबके अंदर है ना. सो वैसे ही बच्चा मेरे अंदर भी था. एंड व्हेन माय पार्टनर पास्ड अवे एंड माय ब्रदर पास्ड अवे, आई रियलाइज कि पार्टनर पास्ड अवे तो भाई ने कहा मैं हूं ना, चिंता मत कर. लेकिन फिर 6 महीने बाद ही उनकी डेथ भी हो गई. 6 महीने पहले ही मेरे मामा की डेथ भी हो गई. हर कोई ऐसे जाता जा रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी हूँ. इसका मतलब अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन मैं और मेरे अंदर का जो बच्चा है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज देयर टिल सच टाइम आई एम अलाइव. एंड इफ आई एम माई ओन मदर, मेरे अंदर एक बच्चा है तो मैं उसकी कौन हुई? माँ हुई. ऐसे ही जो मेल्स हैं उनके अंदर भी अगर एक बच्चा है तो आप उसके कौन हुए? आप उसके पिता हुए. जब तक आप और आपका बच्चा दोनों साथ में हैं, देयर इज नो स्कोप ऑफ लोनलीनेस. स्कोप ही नहीं है. आप हमेशा अपने बच्चे से बात कर सकते हो. वहां जहां आप ये महसूस कर लेते हो कि मेरे अंदर एक बच्चा है, आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो कि गलती हो गई, कोई बात नहीं. आई एम हेयर टू गिव माई सेल्फ 10,000 chances to make mistakes, fail and restart once again. And एक राज की बात बताऊं, जैसे ही 9,999 हो जाएगा, रीसेट बटन पुश कर देना, 10,000 चांसेस फिर से मिल जाएंगे. बिकॉज आई एम माई ओन मदर. सो मैं Exactly. फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ. सो दैट बटन इज इन माई हैंड. सो अगर आप अपने आप के पेरेंट बन जाते हैं तो अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि इट्स ओके. अगर तुम फेल हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स स्टार्ट. बच्चा बीमार होता है, बच्चा गिर जाता है, बच्चा मोटा हो जाता है, तुम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, आज से शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, आज बटर नहीं खाएंगे, ठीक है? ऐसे ही आप अपने आप को बोलना है कि कोई बात नहीं बेटा, हमको बर्गर बहुत पसंद है, तो एक काम करेंगे, एक हफ्ता ये करेंगे और एक हफ्ते के बाद एक बर्गर खाएंगे. And that's how you have to pamper yourself, you have to love yourself, you have to take care of yourself, and you have to give love, care, respect to yourself. क्योंकि जब आप खुद को लव केयर रिस्पेक्ट दोगे तो यूनिवर्स का नियम क्या है? व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड. तो जो वो लव केयर रिस्पेक्ट आप अपने आप को दे रहे हो, अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, दैट विल कम बैक टू यू एंड यू विल सी दैट फ्रॉम ऑल द अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड वेज वो लव केयर रिस्पेक्ट आपकी तरफ खींचा चला आएगा. तो सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करना शुरुआत कीजिए, अपने जीनी को अपने फेवर में एक्टिवेट कीजिए एंड थिंग्स विल टर्न आउट टू बी your favor automatically, and it's really magical. I know. And it's awesome. Like, so many movies are out there which have taught us about self acceptance. पर हम उनको देख के ना भूल जाते हैं. We don't take away a valuable lesson from there. Like जैसे Gone Case करके पिक्चर थी, if you remember, there was a जो बंदा bald हो जाता है and उसको कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है and he is constantly feeling low. Then there was another girl जो बहुत मोटी थी and she could not find a match because she always was so fat that and लोग उसको बोलते, दोनों का self confidence नीचे था. And the day they accepted कि okay, so what if I'm bald, मैं ऐसे ही बहुत अच्छा हूँ, and she thought कि so what if I'm fat, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, is the day that they saw that people also started accepting them because they have accepted themselves. So ऐसे बहुत movies बनी है सुदीप्ति, where I think like we can really like जो तुम आज बता रही हो वो movies के through भी बताया जाता है. But what people generally do is OTT पे देख लिया, सो गए, खाए पिए, यार बड़ी अच्छी पिक्चर थी, पैसा वसूल हो गया. पैसा तब वसूल होगा जब आप वहाँ के lessons जो आपको दिए जा रहे हैं, I think when you start imbibing those positive lessons, जो सीख आपको दे रहे हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तब पैसा वसूल है. मे बी आई थिंक क्या होता है कि जब मूवीज में लोग देखते हैं तो आप और मैं या कोई भी जब मूवी में या स्क्रीन पर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये मूवी है, मूवी में ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, या फेसबुक पे इतनी पोस्ट आती हैं, व्हाट्सएप पे इतनी पोस्ट आती है, ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये सब ज्ञान में अच्छी लगती हैं.
बट एक्चुअली डेली लाइफ में कैसे उसको कन्वर्ट करना है, यूज करना है, वो शायद लोगों को नहीं पता है। बिकॉज पीपल आर टॉकिंग लाइक पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन वो पॉजिटिव सोचना कैसे है, पॉजिटिव बोलना कैसे है, ये नहीं कोई सिखाने जाता, किसी को आता ही नहीं है। सो इफ वी गेट टू नो लाइक हाउ टू यूज पॉजिटिव, हाउ टू थिंक पॉजिटिव एंड व्हाट एग्जैक्टली इज पॉजिटिव, बिकॉज एनर्जी इज ओनली एनर्जी। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए बुरी हो सकती है, जो आपके लिए अच्छी है वो मेरे लिए बुरी हो सकती है। मम्मी बच्चों को जब डांटती है तो उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को निखार रही हूँ, राइट, लेकिन बच्चे के लिए वो नेगेटिव एनर्जी है। सो दिस इज ओनली वी हु लेबल इट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अगर हमें ये समझ आ जाए कि वो थॉट को कैसे मुझे अपने फेवर में यूज करना है, तो शायद वो डे टू डे लाइफ से ही वो मैजिकल इंस्टेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, एंड शायद वो एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ से मेरा अगला तुम्हारी तरफ एक क्वेश्चन आता है, लाइक हैज देयर बीन एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लाइक यू वुड वांट टू शेयर विद अस दैट हैड मेड यू or your client feel more empowered or like magical? I am using the word magical because we call you magical Sudipti, right? So ऐसा कोई incident था या and also like how do you feel when your clients or the people who have been affected by you when they share their achievements with you, तो वो कैसी वाली फीलिंग आती है? Oh, this is amazing. I feel landsliding success coming flowing in my life. मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कहते हैं ना कि दादी को अपने पोते पर पोते देख के बहुत सुकून मिलता है. So I feel like I'm mother of these people, and these people when they are winning, I feel like I am winning. सो मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. मैं अपना एक फेसबुक लाइव शो कर रही थी 2020 में, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ फेज, और मैं अपनी लाइफ को दोबारा से एक फीनिक्स की तरह से इकट्ठा कर रही थी. एंड जस्ट फ्यू डेज बैक माई ब्रदर ऑल्सो पास्ड अवे, लेकिन क्योंकि लोग मुझे देखने सुनने आ रहे थे और मेरे लिए उन सबकी जिंदगी में खुशियाँ क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अपनी भाभी को स्ट्रेंथ देना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो आई वॉज कंडक्टिंग दैट लाइव सेशन. And this lady, she saw my live session, and she was after my live कि मुझे प्लीज एक सेशन दे दो, मुझे आपसे ही एक सेशन चाहिए. कई बार उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैसेंजर पर मेरे से बात करी, एंड फाइनली आई गेव हर दी अपॉइंटमेंट. नाउ शी इज क्वाइट एजेड, मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, और बिल्कुल चाइल्ड लाइक दिल है उनका, इतने प्यार से सरेंडर किया उन्होंने. शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज इन हर कॉर्पोरेट लाइफ, और उस कॉर्पोरेट लाइफ में लाइक शी वॉज क्वाइट गुड 8 9 10 years उनको स्पेंड कर चुकी थी उसी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड नाउ देयर वाज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स विच वाज हैपनिंग अगेंस्ट हर, एंड शी वॉज फीलिंग लाइक दैट एवरीवन इज अगेंस्ट हर एंड शी माइट लूज हर जॉब. उनके हस्बैंड की भी बाईपास सर्जरी हुई थी, एंड शी वॉज रियली गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, कोविड चल रहा था, एंड शी लिव्स इन समवेयर इन मुंबई, तो मुंबई में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज था. सो उनके दिमाग में एक चीज़ हो गया था कि कैसे मुझे दूसरी जॉब मिलेगी, या ये जॉब अगर चली गई मेरे हाथ से, मैं कैसे अपने हस्बैंड का ख्याल रखूंगी, आगे फाइनेंसिस का कैसे मैनेज करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस एज में जॉब भी नहीं मिलती है, और True. मुंबई जैसी ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा. शी वॉज समवेयर अराउंड 55 years ऑफ एज, एंड आज तक भी हम लोग ऐसे कनेक्टेड हैं, वो मुझसे इतनी बड़ी हैं, लेकिन मैं उनकी माँ की तरह से मैंने उनको ट्रीट किया, और हर छोटी छोटी बातें उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी. पहले उन्होंने मुझे बोला उनको जॉब चाहिए, आई टोल्ड हर कि हो जाएगा, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, एंड 3 महीने में काम हो जाएगा. और मुझे भी नहीं पता था कि ये मैजिक कैसे है, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू यूनिवर्सल पावर्स. सो यूनिवर्सल पावर्स दे फ्लो टू मी एंड थ्रू मी. सो आई टोल्ड हर कि 3 months के अंदर हो जाएगा. एंड वो 3 months में होते होते उनके पास ऑफर लेटर आ ही गया था, और ऑफर लेटर आते आते कहते सुदीप्ति, मुझे ना मैं ये चाहती हूँ कि पुराने वाले ऑफिस के लोग जो वो मेरी तारीफ करें और तब मैं जाऊँ, और अच्छे मन से जाऊँ, सबके साथ बना के ना, ऐसे गुस्से गुस्से में ना जाऊँ. ऐसे चलो ये भी हो जाएगा. फिर इवेंचुअली जब ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद कहती है मैंने ना एक घर देखा है, मुझे ये भी चाहिए, एंड आई सेड चलो ये भी हो जाएगा. एंड नाउ 4th of January 2021, she joined that job which she actually was looking for at a much higher level with a higher package जैसा चाहिए था उन्हें, अच्छा एटमॉस्फेयर, और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग उनके घर आके उनको फेयरवेल देकर गए थे विद अ हैप्पी नोट कि मत जाओ तो अच्छा होगा. एंड नाउ शी इज एज ऑफ नाउ शी इज स्टेइंग इन द सेम हाउस विच शी वाज आस्किंग फॉर.
सो एवरीथिंग बिकम सो मैजिकल। और अब वो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को उनके कैंसर और उनके बहुत सारे एलिमेंट्स में भी उनको ट्रीट किया है, बिकॉज आई ट्रेन पीपल फॉर सेल्फ हीलिंग ऑल्सो। सो Okay. सो जब ये सब कुछ होता है तो मुझे लगता है लाइक, एंड देन दे कॉल मी मैजिकल बिकॉज, बट आई हैव डन नथिंग, यू नो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो जस्ट उनको टेक्निक्स बताई हैं, उनको डिसिप्लिन होना बताया है कि यूनिवर्सल लॉज के को कैसे डेली लाइफ में यूज करना है। एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग मैजिक इन देयर ओन लाइफ नाउ, दे हैव बिकम मैजिकल एंड दिस मेक्स मी फील लाइक, यू नो, मैं दादी हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इन मैजिकल पावर्स एंड दिस इज सो पावरफुल, दिस इज इमेंसली पावरफुल। सो इसमें कोई डिफिकल्टीज ऐसे एनकाउंटर की है when people, like, when they expect too much or too little from you, I don't know, or maybe you know have you faced any particular challenges इसमें when people approach you? डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि ऐसे डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कई बार लोग आते हैं कि ये हमसे छोटी है, ये हमें क्या बताएगी, चलो देख लेते हैं। जस्ट लाइक वी रीच आउट टू डिफरेंट डॉक्टर्स सेकंड ओपिनियन के लिए। तो कई बार लोग सिर्फ ऐसे देखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सिर्फ आते हैं, शुरुआत करते हैं, बट दे डोंट स्टे कमिटेड एंड एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्या कॉस्ट मांगता है? आपसे डिसिप्लिन मांगता है, डिसिप्लिन टू टेक स्टेप जस्ट वन मोर डे। आपको ये नहीं सोचना कि आपको 21 दिन करना है या आपको 90 दिन करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे कल और करना है। आज मैंने कर लिया, अब मुझे सिर्फ कल और करना है। फिर कल आएगा तो आपको सोचना है आज और कर लिया, अब कल और करना है। सो ऐसे अगर आप सिर्फ एक दिन और करते जाओगे, सो वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। दूसरा, आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल रीच आउट टू मी, वी बिकम अ टीम। I am giving my authentic involvement, but if they are not involved, I, take myself back from that team. Because then staying there makes no point. सो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम रियली अ हार्ड टास्क मास्टर, क्योंकि ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेरे लिए एक पूजा है जो ऊपर वाले ने मुझे दी है। सो मैं उसका अपमान नहीं कर सकती। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो मेरे लिए रिजल्ट लेके आना, आपको वो फील कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पीपल एक्सपेक्ट कि चाय में चीनी घोल के जैसे पी जाते हैं, सो ऐसे ही मैं एक पुड़िया दूं 2 मिनट की, कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट दो बस, एक इंस्टा के रील की तरह से, और बस मेरी लाइफ में मैजिक हो जाना चाहिए। 2 मिनट्स लेकिन मैगी जो है ना। राइट राइट, अब लाइफ को बदलना है मुझे किसी को, मतलब एक बीमारी है जो पिछले 25 साल से है, 20 साल से है, 30 साल से, 40 साल से है, वो 2 मिनट में कैसे ठीक हो सकती है? कम से कम 40 दिन तो दो अपने आप को, अपने आप से प्यार तो करना शुरू करो। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर सेल्फ लव, यू हैव टू बी रेडी टू ट्रस्ट इन यूनिवर्सल पावर्स। कुछ दिन के लिए मुझसे उधार ले लो मेरा बिलीव, और उसके बाद स्टार्ट बिलीविंग इन यूनिवर्सल पावर्स। एंड 3, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, बिकॉज यूनिवर्स को जब आप डिसिप्लिन और कमिटमेंट देते हो, जब आप ये दिखाते हो कि मैं शिद्दत से इसको पाना चाहता हूँ या पानी चाहती हूँ, तब यूनिवर्स आपके लिए दिल खोल देता है और छप्पर फाड़ के देता है। आप सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स आपके कहाँ कहाँ से क्या क्या चमत्कार आपकी झोली में भर देगा। सो दिस इज अ डिफिकल्टी विच आई फेस। So how can they approach you? Through email or online, or how? They can approach me through my YouTube channel also. They can approach me, they can write back a mail to me, rastogisudipti@gmail.com. और मेरी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी they can approach me. And at this Which website? magicalsudipti.com. Okay. मैं इसलिए पूछ रही हूँ so that जो देख रहे हैं, like, videos do get passed Absolutely. on. So if they Absolutely. know where all to approach you, then, like, the channels are open and it's documented now. Right, तो right. अगर किसी ने मिस कर दिया, वो रिवाइंड रिप्ले भी कर सकता है to बिल्कुल बिल्कुल listen to बिल्कुल। it. और मेरा एक फेसबुक पेज भी है, डिस्कवर योरसेल्फ विद मैजिकल सुदीप्ति। सो आप वहाँ पर भी आप लिख सकते हो मैसेज, सुदीप्ति रस्तोगी जो फेसबुक पर अवेलेबल प्रोफाइल है, वहाँ भी लिख सकते हो। इंस्टा हैंडल भी है सुदीप्ति रस्तोगी के नाम से। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई टेल यू, गूगल पे सुदीप्ति रस्तोगी लिखो, SUDEEPTI, सुदीप्ति रस्तोगी, ये नाम का कॉम्बिनेशन एक ही है। तो तो सुदीप्ति रस्तोगी अगर आप लिखोगे, बस DEE यूज करना है DI की जगह, एंड यू विल फाइंड सुदीप्ति रस्तोगी। आप मेरी बुक पढ़ सकते हो जो अमेजोन पर अवेलेबल है, ABCD ऑफ एफर्मेशन। दिस इज माय फर्स्ट बुक व्हिच इज कंप्लीटली रिटन बाय मी, एंड देन देयर आर 2 other books which are co-authored by me. One is like I Inspire, which is
which is consisting of inspiring stories of people in India. And the other one is Shy to Fly. So Shy to Fly is for those people, those who really want to enter into public speaking. So these books are written in association with author Sherry, who is 12 times TEDx speaker. So with him and with a lot of other people, we have combined this book ताकि अगर कोई अपनी जिंदगी में पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, so, और उसकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर, दैट्स ऑल. यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि हैव यू एवर टेस्टेड फेलियर इन योर लाइफ? And I think you have, because you were mentioning hardships and challenges. So I think we all face, right? But how did you tackle that? And what life lessons did you take out of that? That is more important. सो एक एक बहुत इम्पोर्टेंट सा थॉट है जो मेरे ब्रेन में रजिस्टर किया गया था जिस वक्त आई वॉज अंडर गोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर. तो मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा था और आई वॉज इन एक्यूट डिप्रेशन जब मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैंने अपनी लाइफ को लोनलीनेस से लिबरेशन की तरफ टर्न कर लिया, रिफ्रेमिंग कर लिया, एंड आई बिकेम सर्वाइवर गाइड. वहां पर एक ख्याल मेरे दिमाग में भर दिया गया कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. और वो जो बात थी वो मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गई कि उस दिन से मैंने सर्वाइवर गाइड बनने के लिए सोचा. एंड आई यूज्ड अ फॉर्मूला ऑफ लॉस. लॉस होते हैं ना लोगों को, तो लॉस के फॉर्मूला से आपको लाइफ के लॉसेस को हराना है. और वो लॉस का फॉर्मूला है कि एल से लव योर सेल्फ. इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू रीस्टार्ट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन जहां से भी आपको स्टार्ट करना है. सो जस्ट लव योर सेल्फ. ओ से ओ क्रेडिट टू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव, फैसिलिटीज, फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपका एक ही फ्रेंड हो सकता है एक भी फ्रेंड नहीं हो. सो ओ क्रेडिट टू गॉड कि एटलीस्ट सही टाइम पर आपकी बॉडी ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, सही टाइम पर आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी आंखें से आपको सही दिखाई दे रहा है, आप सही इंसान और गलत इंसान की पहचान कर सकते हैं. क्योंकि दिमाग काम ना करे तो सब खत्म हो जाता है ना. तो जब तक हरकत है तब तक बरकत है. सो ओ क्रेडिट टू गॉड फॉर वट एवर यू हैव एज ऑफ नाउ, इवन इफ यू आर फेसिंग लॉसेस, इट्स ओके. अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं. एंड देन S is for staying focused on those thoughts which are helping you to feel calm, which are soothing you, which are pampering you. For example, जैसे मैंने कहा कि ओ क्रेडिट टू गॉड, और जब फैमिली में आपके जो लव्ड वंस होते हैं जिनकी ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जब वो चले जाते हैं तो आपको लगता है अब क्या बचा, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सही है ना. लेकिन उस वक्त भी अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे कि वो चले गए हैं, वो दर्द में है, उन्होंने मुझे छोड़ के चले गए, मेरा ख्याल नहीं करा, तो आप अपने लिए दर्द क्रिएट कर रहे हो. एंड यू आर एक्चुअली इवेंचुअली टीयरिंग योर चाइल्ड अवे. वो बच्चा ऑलरेडी दर्द में है, आप उसे और दर्द दे रहे हो कि यू नो कि वो नहीं है, वो नहीं है. तो ऐसे में क्या करना है आपको कि इट्स ओके बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं. और अच्छी बात यह है कि हम दोनों मिलके अभी भी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. आई नो इट्स नॉट ईजी, बट एटलीस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस दैट. सो वो थॉट सोचना है कि एटलीस्ट मेरे पास अभी भी कुछ लोग हैं, मेरे पास अभी भी छत है कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैं घर का दरवाजा बंद करके बैठ सकती हूँ. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस होम. आई एम रियली थैंकफुल कि कोई है जो मेरी इस दिमागी हालत में भी मुझे खाना खिला रहा है, वरना आई एम लॉस्ट ऑलमोस्ट. Right? So just owe credit to God and stay focused on all those thoughts which are pampering you and keeping you lighthearted. And then another S is basically swap. Swap the unwanted thoughts with the thoughts which are comforting you and pampering you. और ये स्वैप का फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको ABCD ऑफ एफर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, जो कि Amazon पर अवेलेबल है, बिकॉज दैट विल ट्रेन यू हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन चाइल्ड एंड हाउ टू यूज द मोस्ट लवेबल सास फॉर्मूला. लोग सासों से घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन लवेबल सास का फॉर्मूला अपनी बुक में डाला है. तो वो फॉर्मूला पढ़िए और समझिए कि जब कभी खराब थॉट आपके दिमाग में आए तो उसको किस तरह के थॉट से स्वैप करना है. सो ये लॉस का फॉर्मूला है. अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप अपनी लाइफ से लॉसेस को हरा सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड इन माय लाइफ. So, we've had such a long talk.
बट इट वुड बी लाइक, आई नो यू आर हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम और तुम्हारे को कहीं और एंगेजमेंट है, जाना, बट एक पोइट्री सुना दो, बिकॉज आई वाज I've been wanting to listen to your poetry, but somehow, like, last time भी skip हो गया. So इस बारी I don't want to close the show without listening to your poetry. And for others, उनके प्रवचन मैं बाद में दूंगी, but पहले I don't want to waste time. I want to listen to your poetry. श्योर। और ये पोएट्री मैं सुनाती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में मैं एक मैजिकल स्माइल क्रिएट कर रही हूँ। ये पोएट्री मैं सुना रही हूँ रंजीता मैम आपके लिए कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर पा रही हैं। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस अवार्ड के लिए मेरे को नॉमिनेट किया। सो दिस दिस इज हाउ इट गोज। तेरे चेहरे की एक मुस्कान जिंदगी दे जाती है, फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। हर रोज जिंदगी नया पाठ पढ़ाती है, कभी हंसने का मौका देती तो कभी आंखें नम कर जाती है। ऐसे में तेरे चेहरे की एक मुस्कान जिंदगी दे जाती है, फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। कभी वो बचपन की यादों को गले लगाती तो कभी बीती बातों के दर्द से वो सिहर जाती है। इतने लोगों की भीड़ में कभी वो खुद को अकेला पाती है, पर तेरे चेहरे की एक मुस्कान जिंदगी दे जाती है, फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। कभी नया कुछ सीखने का डर और कभी अपने अपनों की दी धारणाएं पैरों की बेड़ियां बन जाती है। वो डर जाती, घबराती, किसी से मदद मांग नहीं पाती, पर तभी तेरे चेहरे की एक मुस्कान जिंदगी दे जाती है, फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से जब वो थक के चूर हो जाती है, तभी एक एहसास वो फिर अपने दिल में जगाती है। तेरी संतान हूं मैं, जीने का हक है मुझे, कुछ तो आगे बढ़ने का रास्ता दिखा, कहकर रो रो कर चिल्लाती है, और तभी तेरे चेहरे की एक मुस्कान जिंदगी दे जाती है, फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। जिंदगी आज भी रोज एक नए उतार चढ़ाव लेकर आती है, कभी वो फिर से डरती, कभी तेरे आंचल में छुप जाती है। तभी तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की चाहत फिर नए रंग देकर मेरे मन को जगाती है। एक नई उड़ान भरने की इच्छा तभी चुपके से अंदर आ जाती है, क्योंकि तेरे चेहरे की मुस्कान मुझे ज़िंदगी दे जाती है। पहले वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर जीने से डर रही थी, पर आज तेरी मुस्कान के प्यार में वो हर पल आगे बढ़ रही थी। क्या कहूँ तुझसे, क्या नाम दूँ तुझको, तेरी बाहों में जाकर आराम दूँ खुद को। ऐसे ही ना जाने कितनी कश्मकश से गुजर रही थी वो, पर तभी दबे पाँव आकर तेरे चेहरे की मुस्कान ज़िंदगी दे जाती है। फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। आज मैं आईने में देखकर खुद की आँखों को पढ़ रही थी। फाइनली आज मैं अपने आप को आईने में देखकर अपनी आँखों को पढ़ रही थी। एक ज़बरदस्त चमक और उम्मीद उभर रही थी। तभी मैंने देखा, फिसलती हुई मेरे माथे से आँखों पर, आँखों से गालों पर, और फिर गालों से होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि तेरे चेहरे की एक मुस्कान मुझे ज़िंदगी दे जाती है। फाइनली अब मुझे सुकून की नींद आती है। Awesome, बहुत बहुत ही प्यारी, and I would say a very very positive poem. Like, I could visualize so many things. I could visualize you thinking about your nani. I could visualize you being your own child. I could visualize you telling yourself, "Get up, Sudipti, walk, chalo, उठो, काम करो, हारना नहीं है." I could visualize so many things, like, and best is जब I think वो कहते हैं ना, जब हम खुद को आईने में देखते हैं और वी जस्ट एक स्माइल करो, तो भी थोड़ा जो ये और ये एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसमें एक जो फर्क आता है, इट ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ एंड वी इमीडिएटली स्टार्ट फीलिंग बेटर. So this, I think your poem can be interpreted in so many ways, and uh, it's lovely. It's lovely. It's lovely. बहुत ही अच्छी लगी. बहुत थैंक यू बहुत सो बहुत मच। प्यारी. सो आई डोंट राइट वेरी ऑफन। लोग बोलते हैं कि जब वो सैड होते हैं, उदास होते हैं, दर्द में होते हैं, या किसी का दर्द व्यक्त करना होता है, तब पोइट्री लिखते हैं। बट मैं जब बहुत खुश होती हूँ, मैं तब लिखती हूँ। Good. Because
दर्द पे लिखोगे तो दर्द आगे जाएगा, और खुशी में लिखोगे तो वो खुशी मल्टीप्लाई होके आगे जाएगी. सो कहीं राइट, कोई दर्द में भी होगा तो एक खुश भरी पोयम पढ़ेगा, somebody who reads something positive जहां से उसके मुंह पे हंसी आ जाए, तो फिर और क्या है, just smiles that carry on for miles and miles. एब्सोल्युटली, So एब्सोल्युटली. it's a very positive thing, and I am so very happy that we could finally make it after so many Ups and downs. ups and downs. But then that is what life is. And that is what Absolutely. I think, yeah, that is how you come closer by, like, trying to match rhythm with and harmony and kind of harmonize. And पीछे वाले लोगों को नहीं पता हमने आज का टाइम ही कितनी बार चेंज किया है. एंड देयर Right. वर डिफरेंट रीजंस, एंड वी हैड डिसाइडेड कि हम स्ट्रिक्टली आधा घंटा बात करेंगे और बिल्कुल बात नहीं करेंगे. एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट लिमिट. सो so that's okay with me. That's as I always enjoy Absolutely. talking to you. And here, before I end, I would like to again congratulate you. ट्रॉफी आपके पास पहुंचने वाली होगी. आई थिंक या तो पहुंच गई है. मंडे यू विल बी रिसीविंग इट. एंड आई विश आज होती है आपके पास, so we could have Uh, like kind of displayed it today. But Absolutely, anyway, absolutely. I'll be looking forward to your selfie and video bite with the trophy, For and sure. then I'll proudly display it to everybody. See, that's magical, Sudipti. So, Thank and you. Harish, congratulations for being RSVK awardee, and Thank you have so a much. Thank you so much, Ranjita ma'am, for hosting such a wonderful interaction. And in fact, I'll say that thank you so much for initiating this initiative also, right from receiving the idea to completely to, the final point, the execution, meeting of people, bringing them to one platform, winning their trophies, delivering it to it, and now ensuring that it is there, उन लोग को मिल गई है, हम सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमसे बात करना, ताकि हम अपने दिल की बात और दिलों तक पहुंचा सकें, एक दिल से दिल का कनेक्शन एक बिल्ड कर सकें. सो ऑल कंप्लीट क्रेडिट गोज टू यूज एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. एंड मेरा एक सिग्नेचर जो मैं हमेशा देती हूँ. सो आई ऑलवेज गिव मैजिकल डस्ट टू लॉट ऑफ पीपल. सो आई एम sending magical dust to I've you got it. and to all those people who are watching this video. और मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है. इसको आसानी से आसान करने में बहुत मज़ा आएगा. आपको सिर्फ ये सीखना है कि अपने जीनी को अपने फेवर में कैसे एक्टिवेट करना है. सो मिलिए और पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव सोचिए. कैसे सोचना है वो मुझसे पूछ लीजिएगा. आई विल हेल्प यू. एंड That प्लीज़ is why खुश I made रहिए. you spell out everything over here, so that, like, once you give it to me, WhatsApp पे आ जाएगा, तो मैं YouTube में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगी. बट लाइक श्योर. some not very many people know कि YouTube डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होते हैं. So that is why मैंने बोला कि एक बार बता दो, so that वो नहीं rewind replay, it is श्योर. documented and people know where to find you in case they feel lonely, or even if they feel that their self-worth is getting less Or in maybe if they any way, think, if any you think time. that Mhm. you are feeling difficulty in your corporate life. So I have 18, 19 years of corporate life also. I'm still working in corporate world. So पर्सनल लाइफ में कोई इशू है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इशू है, सास बहू के रिलेशनशिप में आप बेहतर करना चाहते हैं, दोस्तों के रिलेशनशिप में आप बेहतर करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ में, फ्रेंड्स में, बहनों में, कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं, सो फील फ्री. और पूरे पूरे पावर आपके पास है. मुझे सिर्फ धूल हटानी है. एंड दैट इज व्हाट माय एक्सपर्टीज इज. So thank you so much again for being here, and थैंक यू we सो मच close it अनिता. for today. थैंक यू सो मच. या. Bye bye. So that was Sudipti, magical Sudipti for you all. And like very rightfully she said कि हमारे पास टूल्स होते हैं जो कि हम कई बार भूल जाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या ड्यू टू circumstances of pressure or say anxiety or fear or stress whatever, हम थोड़े से we lose tune with ourselves. That is where Sudipti can help you come in tune with yourself. Like she said, थोड़ी सी धूल हटा देती है, एंड देन अगेन आईना आपको पूरा साफ नजर आता है. एंड acceptability is another key. So start with accepting who you are.
खुद को एक्सेप्ट करिए। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, बुरा है तो वहां से आगे चलिए, और अच्छा है तो और बेहतर बनिए। Right? With this positive note, I'll close the session for today. Thank you so much for watching us. We'll join up once again on the same platform with another RSVK body. Till then, bye bye.